جی دوستوں، پاکستان میں کئی خطرناک بیماریاں ہیں، لیکن زور پولیو پہ ہی کیوں دیا جا رہا ہے؟ پولیو ویکسین ہمارے تولیدی نظام کو کمزور کر رہا ہے، اور ان لوگوں نے کب ہماری مدد کی ہے، کب ہماری بھلائی کا سوچا ہے جو اب پولیو کی ویکسین ہمیں فری میں دے رہے ہیں؟ اور اس طرح کئی سوالات کے بعد جو سوال جنم لیتا ہے، جو سادہ لوگ والدین کو کنفیوز کر دیتے ہیں، آیا بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے چاہیے یا نہیں؟ ان سوالات کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم پولیو کے بارے میں جاننا چاہیں گے کہ دراصل پولیو ہے کیا، کن چیزوں سے ہوتا ہے اور کیسے پھیلتا ہے۔ پولیو میلائٹس یعنی پولیو ایک موذی مرض ہے جو وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے، پولیو وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی ایک وائرل انفیکشن ہے، اور جو ہماری قوت مدافعت کو کمزور کر کے ہمارے اعصابی نظام کو کمزور کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے جسم کی کسی حصے کا پیرالائسس یعنی حصہ مفلوج ہو جاتا ہے، اور ساتھ میں سانس کی بندش کی تکلیف بھی شروع ہو جاتی ہے، جو بعد میں موت کا سبب بن جاتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پولیو وائرس سے ہم متاثر کیسے ہوتے ہیں، یعنی پولیو وائرس پھیلتا کیسے ہے؟ پولیو وائرس فیکل اورل روٹ یعنی متاثرہ شخص کے پاخانے سے آلودہ ہونے والا پانی یا آلودہ ہونے والے خوراک کے استعمال کی وجہ سے صحت مند انسان میں منتقل ہوتا ہے، یا جو پولیو وائرس سے متاثرہ شخص ہے اس کی کھانسی یا چھینک آنے کی وجہ سے بھی صحت مند افراد میں وہ وائرس منتقل ہو سکتا ہے۔ متاثرہ خوراک کے استعمال کے بعد پولیو وائرس ہمارے اسمال انٹسٹائن یعنی چھوٹے آنت میں چلا جاتا ہے، جہاں پہ وہ اپنی نسل بڑھا کے خون میں شامل ہو جاتا ہے اور ہماری قوت مدافعت یعنی امیون سسٹم سے جنگ لگنا شروع کر دیتا ہے، جس میں وہ نیوٹروفلز اور میکروفیجز سیل کو کل کر کے انفلیمیشن پیدا کر دیتا ہے، اور جس کی وجہ سے ہمارے نیورونز یعنی نرو سیلز کو نقصان پہنچنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی نیورون کو ڈیمیج کر دیتا ہے۔ نیورون کا جیسے ہم نے لاسٹ ویڈیو میں پڑھا تھا کہ نیورون کا فنکشن یہ ہے کہ وہ ہمارے برین سے باڈی پارٹس کو اور باڈی پارٹس سے برین کو میسیجز کنوے کرتا ہے، لیکن یہاں پہ نیورون کے ڈیمیج ہو جانے کے بعد میسیجز کنوے ہونا بند ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے پٹے یعنی مسلز کمزور ہو جاتے ہیں اور اس حصے میں پیرالائسس پیدا ہو جاتی ہے، یعنی وہ حصہ مفلوج ہو جاتا ہے۔ پولیو کے اگر ٹائپ کی بات کریں تو پولیو کی ہمارے پاس ایک قسم ایبورٹیو پولیو ہے، یعنی نان پیرالائٹک پولیو، اس سے پیرالائسس نہیں ہوتا اور یہ جلدی ریکور ہو جاتا ہے، جبکہ دوسرا جو ٹائپ ہے وہ پیرالائٹک پولیو ہے، ایک ریئر کیس یعنی بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے، لیکن اس میں جسم کی پیرالائسس واقع ہو جاتی ہے، یعنی جسم کا کوئی حصہ مفلوج ہو جاتا ہے اور اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ علامات کی اگر ہم بات کر لیں تو وائرس جسم میں داخل ہونے کے بعد 7 سے 35 دن کے اندر اپنے علامات ظاہر کر دیتا ہے، جس میں بخار، سر درد، متلی کے ساتھ ساتھ ریڑھ کی ہڈی میں درد اور اکڑاہٹ، ہاتھ پاؤں میں درد، پٹوں کی کمزوری، ہاتھ پاؤں میں درد کے ساتھ شل ہونا یعنی ہاتھ پاؤں میں دم نہ ہونا، اور اس کے بعد فالج کا اٹیک ہونا یعنی مفلوج ہو جانا شامل ہے۔ جی، یہاں تک تو ہم نے پڑھ لیا پولیو کے بارے میں کہ پولیو کسے کہتے ہیں، کس وجہ سے ہوتا ہے اور ہمارے جسم میں منتقل کیسے ہوتا ہے یہ وائرس۔ اب ہم بات کریں گے پولیو ان پاکستان اور اس سوالات کے بارے میں۔ حالیہ رپورٹس کے مطابق دنیا میں اب تک صرف 2 ممالک میں پولیو وائرس رہتے ہیں، وہ ہے پاکستان اور افغانستان، اور پاکستان میں اس سال بھی 8 کیسز آئے ہیں، یعنی 8 لوگ پولیو سے متاثر ہو چکے ہیں، اور ان 8 لوگوں سے کسی بھی صحت مند انسان میں پولیو وائرس منتقل ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے پڑھ لیا کہ پولیو وائرس کیسے منتقل ہوتے ہیں، متاثرہ شخص سے صحت مند انسان میں منتقل ہوتا ہے۔ اب اس سال 8 کیسز آئے ہیں، ان 8 کیسز سے کسی بھی صحت مند انسان میں پولیو منتقل ہو سکتا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں پہ اندر دن یقین کر لیا جاتا ہے، یعنی تحقیقات نہیں ہوتی اور ہم یقین کر لیتے ہیں۔ ابھی جیسے پولیو ویکسین کے بارے میں چمگوئی ہو رہی تھی کہ جی پولیو ویکسین میں یہ ہے، پولیو ویکسین میں وہ ہے، اب یہ ان لوگوں میں سے زیادہ تر کو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ ویکسین کہتے کسے ہے۔ ویکسین وہ دوائی ہوتی ہے جو کسی بھی بیماری کے جراثیم یعنی اس کے سپمس کو
इनएक्टिव कर लिया जाता है, यानी अधमुर्दा करके इंसान की बॉडी में इम्प्लांट कर दिया जाता है, इंसान की बॉडी में दाखिल कर दिया जाता है, ताकि हमारा इम्यून सिस्टम उस वायरस से खुद को शनाख्त पैदा कर ले। इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारा जो इम्यून सिस्टम है उस वायरस को पहचान लेता है, और जब कभी जो जिंदा वायरस होता है वो अटैक कर लेते हैं, हमारी बॉडी में आ जाते हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम वक्त जाया किए बगैर उसको पहचान कर उसे मार देता है, यानी उसको खत्म कर देता है। जैसे मैंने बता दिया कि पोलियो वायरस जब जिस्म में दाखिल होता है तो छोटी आंत में अपनी नस्ल बढ़ा देता है, जिसके बाद खून में शामिल होता है। अब यहाँ पर अगर हमारा कुव्वत मुदाफियत इस वायरस को पहचान ले, जल्दी शनाख्त कर ले, तो उसको मल्टीप्लिकेशन यानी वो अपनी नस्ल नहीं बढ़ा पाएगा और जल्दी खत्म कर लेगा। लेकिन ये तब पॉसिबल है जब हमारी बॉडी में इसकी वैक्सीन मौजूद हो, जब हमारी बॉडी में इस वायरस की वैक्सीन इम्प्लांट की गई हो, अधमुर्दा जरासीम इसके इम्प्लांट की गई हो और हमारा कुव्वत मुदाफियत इससे शनाख्त पैदा कर लिया हो, तब भी कुव्वत मुदाफियत उसको खत्म कर लेता है और मल्टीप्लिकेशन से बचा के हमारे असाबी निजाम के साथ साथ हमें पैरालाइसिस से बचा लेता है। वरना तो ये वायरस इंटर होकर अपनी नस्ल बढ़ा देता है, जिसके बाद वो खून में शामिल हो जाता है और जो हमारे इम्यून सिस्टम है उसको कमजोर कर लेता है और हमारे असाब को कमजोर कर लेता है, असाबी निजाम को कमजोर कर लेता है और हमारे जिस्म में पैरालाइसिस पैदा कर लेता है, और जो बाद में हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाता है, यानी हम इसकी केयर नहीं कर सकते। तो आपने अपने घर में गली मोहल्ले में देखा होगा, बच्चे की पैदाइश से लेकर 15 माह तक उसको मुख्तलिफ किस्म के टीके लगाए जाते हैं। उस टीकों की वजह से हमने मुख्तलिफ बीमारियां जैसे खसरा, तिब्बे खनाक, हेपेटाइटिस, नमोनिया, काली कांसी और कई तरह की मुहलिक बीमारियों पे काबू पा लिया है। ये बीमारियां भी किसी वक्त में लाइलाज तस्वुर की जाती थी, लेकिन वैक्सीन की वजह से हमने इन बीमारियों पे काबू पा लिया है। यानी जब बच्चे की पैदाइश में ये वैक्सीन बच्चे में इम्प्लांट कर दिया जाता है, बच्चे को टीका लगा दिया जाता है, तो उसमें बच्चे का कुव्वत मुदाफियत एक्टिव हो जाता है और इन बीमारियों को पहचान लेता है, और जब कभी ये बीमारियां अटैक कर लेती है तो उसको कत्ल कर देती है। खत्म जो हमारा कुव्वत मुदाफियत है वो इस बीमारी को कत्ल करके खत्म कर देती है। जब इन वैक्सीन पे, जब इन टीकों पे कोई एतराज नहीं है, तो पोलियो वैक्सीन पे एतराज क्यों, पोलियो के कतरे पे एतराज क्यों? पोलियो वायरस भी यानी पोलियो की वैक्सीन भी यही इसी तरह के कतरे, इसी तरह के वैक्सीन है जो बच्चे को लगा दिए जाते हैं ताकि वो खुद को महफूज कर सके। और रही बात यह कि पाकिस्तान में कई खतरनाक बीमारियां हैं, लेकिन उनकी बजाय पोलियो पे जोर क्यों दिया जा रहा है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान में कई खतरनाक बीमारियां हैं, जैसे हेपेटाइटिस हो गया, शुगर हो गया, अल्सर हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, और इस तरह की खतरनाक बीमारियां हैं। लेकिन हम उस पर काबू पा सकते हैं, उसका हम इलाज कर सकते हैं। अगर इलाज के साथ साथ हम अपने उसके परहेज यानी केयर कर ले, एहतियाती तदबीर अपनाए, तो हम उस बीमारी पे काबू पा सकते हैं। यदि शुगर का एग्जांपल ले ले, शुगर के अगर हम टाइम पे दवाई ले, हम केयर करें, हम वो उन चीजों से एहतियात करें जिससे हमारा शुगर लेवल हाई होता है, तो हम शुगर पे अपनी बीमारी पे काबू पा सकते हैं। लेकिन पोलियो हमारे पास ऐसी बीमारी है जिसका हमारे पास जो आउटपुट है वो बैसाखी या व्हील चेयर पे ही आ जाता है बच्चा, हम उसका इलाज नहीं कर सकते। इसी वजह से इस बीमारी पे जोर दिया जा रहा है, क्योंकि बाकी बीमारियों पे हम काबू पा लेते हैं, हम ट्रीटमेंट कर लेते हैं, उसकी एहतियाती तदाबीर बता लेते हैं पेशेंट्स को। लेकिन पोलियो से मुतासर हो जाने के बाद आप बताइए कि एक बच्चा व्हील चेयर पे आने के बाद हम उसकी क्या इलाज कर सकते हैं, हम उसकी क्या प्रिवेंटेशन कर सकते हैं? वो तो मुतासर हो गया, वो तो बैसाखी पे या व्हील चेयर पे आ गया, उसके हाथ पांव टेढ़े हो गए, तब हम उसका कोई इलाज नहीं कर सकते। इसी वजह से मेरे ख्याल में सिर्फ इसी वजह से पोलियो पे ही जोर दिया जाता है, क्योंकि एक दफा बच्चा व्हील चेयर पे आने के बाद हमारे पास उसका कोई इलाज मौजूद नहीं है। अगर आपको लगता है कि हम बच्चे का इलाज कर सकते हैं, मुतासर होने के बाद भी बच्चे का इलाज कर सकते हैं, तो बेशक आप अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ना पिलाएं, उनको माजूर होने दें, और माजूर होने के बाद हम देखेंगे कि उसका इलाज हम कर सकते हैं या नहीं। याद रखें, बच्चे को बुनियादी जरूरियात को पूरे करने के साथ साथ बच्चे को जानलेवा बीमारियों से बचाना भी वालिदैन का ही फरीजा है, और आपकी एक गलती बच्चे के मुस्तकबिल को तारीख कर सकती है। यही बात है कि वैक्सीन से तौलीदी निजाम मुतासर होता है, तौलीदी निजाम कमजोर होता है। तो मुझे पोलियो की वैक्सीनेशन करवाई गई है, मैंने हर बार पोलियो के कतरे पिए हैं, और हमारे घर के हर बच्चे को पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं। इसके अलावा डॉक्टर अदीब रिजवी साहब जो मेडिकल फील्ड में एक नाम है, और अगर इस्लामिक हवाले से देखा जाए तो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब,
ये लोग पोलियो वैक्सीन के हक के बारे में बात ना करते, ये लोग इनकार कर देते और ये लोग मना कर देते कि पोलियो की वैक्सीन ना पिलाया जाए। जबकि मुफ्ती तौहीद उस्मानी साहब का आप लोगों ने खुद बयान देखा है कि वो जब भी हज पे जाते हैं वो अब भी पोलियो के कतरे पीते हैं। अगर ऐसी कोई बात होती, ऐसी कोई प्रॉब्लम होती तो ये लोग हमें मना कर देते, मुझे कतरे नहीं पिलाए जाते, हमारे घर में पोलियो के कतरे नहीं पिलाए जाते। जबकि ऐसी कोई भी बात नहीं है, एक अफवाह है जिसकी वजह से सीधे साधे वालिदैन को कंफ्यूज कर लिया जाता है और वो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाते। इसके अलावा बाबर बिन अताबई जो वज़ीर आज़म के माओन खुसूस बराए इंसदादी पोलियो, उनका बयान आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में इस्लामाबाद में एक लैब मौजूद है जहाँ पे साइंसदान डॉक्टर हजरात न सिर्फ रिसर्च कर रहे हैं बल्कि इसके साथ साथ वो लोग दूसरे ममालिक में जाकर उन लोगों की स्टाफ को भी पढ़ा रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास इतने वसाइल है नहीं कि हम अपने पोलियो की वैक्सीन बना सके, अपने पोलियो के कतरे बना सके। हमें अभी भी शुक्र अदा करना चाहिए कि पोलियो के कतरे हमें मिल रहे हैं, फ्री में मिल रहे हैं। लेकिन ये हमें फ्री में मिल रहे हैं इस वजह से हम कदर नहीं करते, अपने बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाते। लेकिन अगर यही कतरे 5000 में मिलते और आपको बच्चे की पैदाइश के बाद या हर बार आपको ये कहा जाता है कि बच्चे को मजदूरी से बचाना चाहते हो तो 5000 जमा करके अपने बच्चे को पोलियो के कतरे पिलाओ, तो तब हम बच्चे को 5000 में पोलियो के कतरे भी पिलाएंगे और गवर्नमेंट में भी तनकीद करेंगे कि फ्री क्यों नहीं किए जा रहे हैं। लेकिन आज फ्री है तो हम फजूल की तनकीद कर रहे हैं कि जी पोलियो में ये हो रहा है, पोलियो वैक्सीन में वो हो रहा है और अपने बच्चों को पोलियो नहीं पिला रहे हैं, जिसकी वजह से नए केसेस सामने आ रहे हैं। जैसे इस साल 8 केसेस आए हुए हैं और अभी तक सिर्फ 2 ही ममालिक बचे हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। बाकी दुनिया से पोलियो का खात्मा हो चुका है और वो भी इसी तरह से खात्मा कर चुके हैं, पोलियो की वैक्सीन पिलाए हैं, पोलियो के कतरे पिलाए हैं। तो हम भी अहद करते हैं कि हम भी पाकिस्तान को पोलियो से पाक करेंगे, पाकिस्तान में पोलियो का एक केस नहीं छोड़ेंगे। और इसके लिए जरूरी है कि हम 5 साल तक के बच्चों को पोलियो के कतरे हर बार जरूर पिलाएं। पोलियो की बीमारी किसी भी एज में हो सकती है, यंग एज में भी हो सकती है, ओल्ड एज में भी हो सकती है, लेकिन इसका जो प्रोमिनेंट टाइम है, जो ज्यादा अटैक कर सकते हैं वो 5 साल तक के बच्चों पे इस ज्यादा कॉमनली अटैक कर सकते हैं। इसलिए अगर हमने अपने बच्चों को, अपने पाकिस्तान को पोलियो से पाक रखना है, पोलियो से साफ रखना है, तो हमने अपने बच्चों को लाजमी हमने पोलियो के कतरे पिलाने हैं। याद रखें, आपका एक गलत फैसला आपके बच्चे का मुस्तकबिल तारीख कर सकते हैं। आपका एक गलत फैसला आपके बच्चे को हमेशा के लिए मफलूज कर सकते हैं। लिहाजा अपने बच्चे के फ्यूचर को तारीख होने से बचाए, अपने बच्चे को माजूर होने से बचाए और पोलियो के कतरे लाजमी पिलाए हर बार। यहाँ तक थी मेरी वीडियो, होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर पोलियो के बारे में किसी भी किस्म का कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।